तो अभी हम सीआरसी स्पेशल एजुकेशन अंडोमान में है, ये मुर्शिदाबाद में है। एक ही सेंटर है गवर्नमेंट का और ये जो भी आरपीडी एक्ट में रिकॉग्नाइज डिसेबिलिटीज़ है 21 उन सब के लिए काम करते हैं। लेकिन अभी मैडम बता रहे थे कि रेयर डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे कम है। कुछ बातचीत करेंगे। वेलकम टू रेडियो उड़ान मैम, योर नेम? Thank you. I'm Sumita Moles, Resident Nodal Officer, CRC Brukshabad. व्हेन डिड यू जॉइन दिस सेंटर एंड वेयर आर यू फ्रॉम? So I'm joined in the center, the Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation of Empowerment Persons with Disabilities. CRC Andaman Nicobar Islands was inaugurated January 27, 2020 at Brukshabad, Port Blair, South Andaman, which is situated in 7 kilometers from Garkar International Airport, also known as the Port Blair Airport. Yes. How many disabled are there in this center? So approximate 450 students is there in तो our सभी को हॉस्टल प्रोवाइड करवा रहे हैं आप? hostel service is not there, sir. ओके. Here clinical service है 9 to 5:30 we are working. So here our department is clinical psychology department is there, department of clinical psychology, department of speech and hearing, department of physiotherapy, department of occupational therapy, department of special education, department of social work, department of orientation and mobility, department of prosthetics and orthotics, vocational training and skill development unit is also there. तो जो बच्चे ब्लाइंड हैं या दूसरे डिसेबल्ड हैं, यहाँ पे कोई भी स्पेशल स्कूल नहीं है अंडोमान में. Yes. तो वो कहाँ जाते हैं पढ़ने? Andaman no special school is there, but Samagra Shiksha Abhiyan में resource room also available and special educator also will be available, and CRC also providing the services. I went to Havelock, I went to Neil Island, I spoke to many people. Yeah. And they said there is no school whatsoever for disabled, in that they all come to Port Blair. Yes, correct, sir. Inter Islands no special school is not there. If government school is there, then 1 or 2 special educator only there in that government school. So lack of approximate 35-40 special educator only there in Andaman, sir. Only 40 special educators. Approximate, sir. तो कैसे बहुत बच्चे तो पढ़ते ही नहीं होंगे फिर, क्योंकि सुविधाएं नहीं है, उनके घर वाले भेजते नहीं होंगे. Because the lack of professionals we are facing, if here in CRC also, if professionals are not willing to join in Andaman also, because more living cost also more, and economical cost also very more, and here also professional college also not. If diploma in special education, B.Ed in special education, B.Ed in visual impairment, B.Ed in hearing impairment, no special college is also not there. So the lack of professionals mainly the one of the problem in Andaman. गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम यहाँ रन करती है डिसेबल्ड के लिए? CRC Andaman is providing the government scheme is ADIP scheme, and the Niramaya insurance scheme is we are providing, and the other department social welfare and the scholarship scheme also there, and those are pre-metric post-metric scholarship scheme also there. That is government scholarship, the center government scholarship. Central government schemes also. यहाँ लोकल जो गवर्नमेंट है वहाँ से कुछ होता है यहाँ? पेंशन वगैरह डिसेबिलिटी अलाउंस क्या है? डिसेबिलिटी पेंशन also कितनी है यहाँ पे? Approximate school students approximate 2500 pension है, and दूसरा pension also we are providing. CRC is not providing, and social welfare also providing the pension also. तो डिसेबल्ड बच्चों के पेरेंट्स आपके पास आते होंगे, तो यहाँ पे जैसे आपने खुद बताया कि रहने की कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है, हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करते आप लोग. Hostels are here we are working under NIMBD, National Institute of Empowerment of Persons with Disability, Ministry of Social Justice and Empowerment, and here the hostel facility, here the local students only will come, because other islands also they will come, but here accommodation facility also we are providing, but limited space only, sir. So we are trying तो प्रेफरेंस किसको देते हो आप? Preference is local people also, other islands people also. Other islands peoples में weekly once only they will come, or monthly once only they will come. So other islands people students also we are given the preference also. If they will come 1 month, every day we are providing the session also. If 1 month maybe they are taking the leave, and then only they will come. Most of the parents also government service.
तो लोगों को अवेयरनेस है डिसेबिलिटी को लेके, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या लोकल लोग हैं उनको जो Yeah, we are already conducted Anganwadi training programs, learning disability awareness program to the teachers, and a lot of schemes, ADIP schemes, and we already recently approximate 200 materials already we distributed. how many disabled are there in entire Andaman Island? Approximately as per the 2011 census, 6,680 disability peoples are there in इंक्लूडिंग ऑल द आइलैंड्स या ओनली? yeah, including all the islands अच्छा, जो as per the census. राइट तो अभी तो सिचुएशन थोड़ी बदली हो, क्योंकि उस टाइम पे तो आरपीडी एक्ट नहीं था, तो सिर्फ 7 ही डिसेबिलिटीज़ थी, तो अभी 21 हो गई हैं। तो जो कई आइलैंड है जहाँ पे जाना मुश्किल है, नहीं जा सकते लोग, तो वहाँ के जो डिसेबल्ड है उनकी क्या सिचुएशन है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी आपके पास? Sir, in Andaman, due to the bad weather, also one of the reasons. Sir. If bad weather, if ship also not possible, if flight also not possible, so they will come. They mostly the peoples are using in by road and ship also. So they will come and take the service. We are welcoming, but they are also facing lot of challenges. मैं ये in other पूछना चाह islands. रहा हूँ, जो जहाँ ट्राइब्स रहते हैं, जहाँ पे नॉर्मली विजिटर नहीं जा सकते, तो क्या वो लोग डिसेबिलिटी, अपने बच्चों को डिसेबिलिटी को लेके अवेयर हैं? क्या वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें? So I inquire this because the tribals is any schemes providing, or I inquire, sir. But if I didn't get any information regarding this, please. If anybody, any tribals is disabled, or that report also we didn't get, sir. That's why the reality. If we will get, we will maximum, we will try our level best. जो यहाँ का सोशल वेलफेयर ऑफिस है, so are they taking steps to ensure accessibility and other issues, or are they aware, local people are aware with regard to RPD Act? Yes, sir. Here, social welfare department is very active, and they are doing lot of things also. So good. If CWSN and the disability peoples also, they are taking more initiatives also. So I think the tribals details also, their hand also may be there. I don't know too much aware that things also. Right. Sir. What is different in Kerala and here, because you came from Kerala, so Yes. what sort of differences you have found here? Actually, sir, in our Kerala, if a lot of special schools also there, sir. Lot of special Yes. schools also there, and lot of colleges also there. So the Kerala government is also producing the lot of professionals. So the +2 after there will go the diploma. Lot of colleges in even one district also, at least 2 colleges also there. So if their career also, if lot of people also working abroad also, and Right. other government service also, Samagra Shishya and Abhayan also, and our if even they will go to private sector, lot of private sector also there, if Right. clinical service and Christian oriented like charity level services also there, and lot of private center is there. If my child is facing any difficulty, you can go private center, government center. And if here Andaman, even no private center also not there, sir. Actually, if Nimmad also, I'm joining approximate 1.5 years, sir. So if Nimmad also trying too much time, so inquiring and notification also we are done, but even occupational therapist and speech therapist also not even not applying also that post also. It's good salary we are providing. This is a government post, but not permanent contract basis. But even nobody is applying this post also, sir. So Right. that also affecting our kids also. So we are providing sincerely, we are providing good service, sir. Even everything we are providing free. So schemes and parental awareness programs also we are providing. ADIP scheme also we are providing. Inter Islands program also we are सबसे ज़्यादा conducting. डिसेबिलिटी जो डिसेबल्ड है किस कैटेगरी में आपके पास? Here mostly as I can understand autism, ADHD and intellectual disability mostly. विजुअली इम्पेयर्ड कितने हैं यहाँ Visually पे? impaired approximates as per the register approximate 6. 6. Yeah. So that is the main difference from Andaman and Kerala, sir. Yes. Professionals and colleges also not there. Even special school is not there, and professionals also not there.
So you have infrastructure highlight- also infrastructure is the issue. infrastructure Right. also not there as per the RPWD and as per the right education. So infrastructure also not that much good. Available. That much not Yeah. available. So, what are the biggest 4 or 5 challenges before persons with disabilities in Andaman? What would be those 4 or 5 biggest challenges you have noted down with your personal experience? Personal challenges, sir. Personal challenges, actually, if whatever the child, we are barrier free environment is very very important. Barrier free environment. Barrier free environment and adaptations. Even if blind children also softwares and adapted materials and their beneficiaries. If whatever the scheme is there, they will get or not, that much also we don't know. That's why, so we are given more awareness, but mostly the central government staff here working, so that's why parents also not that much what I am saying, if they don't want the any benefits like that. Right. If poor people definitely they will ask the questions what the schemes, my post matric scholarship schemes, anything is available, or their ADIP scheme also. So more inter islands also program we are trying to aware, but parents is or some peoples are not that much taking the seriousness. Right. If service also we are given the online special education service also, sir. Internet facility is one of the problems, sir. Inter Right. islands we are online. If inter islands they cannot take, they will not come here also. We are planning to give the online service also. That time also we are facing the challenges in internet problems, network issues. That also we are facing. So, like you said, ki there will be pension around 2,500 for the disabled. Yeah, So, approximately. so even they are not applying for that? Yeah, mostly they are applied, sir. Most of the students are applying, but some students are not. If schools also every time they are directly you go, and then they today newspaper also there, the scholarship schemes, the social welfare inviting the application. So if most of them are applied, but somebody is not applying. Okay. So they don't want this scheme. What is the So employment status? What sort of employment opportunities are there for the disabled? here employment opportunities, as per my knowledge, is disability categories 3% reservation like that. So other employment is skill development. Whatever the skill development we are trying. So that skill development training after they are placing in some other, not government organizations, no private organization they will work. And government also, as per the UPSC exam or return exam, they will place according to the qualification. In local and government, is the backlog is implemented? in local government, sir, this is the UT now. That's why UT schemes only they can implement. So Yeah, that UT are they whatever the scheme implementing? is there, that's each and every department is, I think, trying to implement. I think not too much. Because I spoke to some local people. Okay. I said, have you ever seen a blind working in a any government department? They said no, never. Yes. So it means, and I asked this question from around about 20 to 25 people. Even some of the people said, you are the first couple that we have seen that you both are visually impaired and visiting Andaman. Okay. Yes. Is So my- it means our awareness level is So down. you are taken this much effort also. I am appreciating you, sir. First time I am talking with one person this much. So this you are, because we are working very sincerely, sir. Yes. So we are trying to we are working only for the welfare of disability only. So this passion is not there. Now we are not going to study the special education, B.Ed or M.Ed or whatever, even higher studies also. That is our passion. That's why we are working this field. Without the Right. passion, we cannot work here also. So that's What why message you want to give to other people who are listening across the world? accept. Firstly, accept our kids, accept our children with the special needs. Whatever their rights, you have to provide these things. If job opportunities or whatever, if acceptance is very very important. Right. Thank you so much for talking to us. Thank you, sir. Thank you very much, sir. So we were talking to Ms. Smita, Regional Head of CRC Special Education, Burshabad, Andaman. So now we have Administrative Officer in CRC Special Education. Sir, tell us a bit about yourself.
मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ। मेरा नाम विश्वजीत रॉय है और मैं यूटी से ही बिलोंग करता हूँ, अंडमान निकोबार आइलैंड से। और यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है सीआरसी में, जो निपमट के अंडर आता है, यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो मैं लुक आफ्टर करता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे। यहाँ क्या क्या सर्विसेज हैं? यहाँ पे सर हम लोग जनरली यहाँ पे जो स्कीम्स अगर आप पूछेंगे तो सर किरण मेंटल हेल्थ जो काउंसलिंग दिया जाता है वो हमारे यहाँ पे चलता है, प्लस एडीप स्कीम यहाँ पे चलता है। अदर देन ये दोनों को छोड़ के हमारे सीआरसी में थेरेपीज़ दिया जाता है, अलग अलग तरीके का थेरेपीज़ दिया जाता है। जब भी कोई बच्चा दिव्यांगजन जब हमारे सेंटर में आता है तो हम क्या करते हैं, उनको सबसे पहले उनको रजिस्टर करते हैं हमारे सेंटर पे। रजिस्टर होने के बाद उनको क्या प्रॉब्लम है उसको एसेस करने के लिए जितने भी यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं वो सबके पास वो बच्चे को भेजा जाता है। उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके अंदर में क्या इश्यूज़ पाया जाता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या ज़रूरत है या कुछ भी ज़रूरत है, तो वो हिसाब से उसके ऊपर वर्क किया जाता है। अगर उसको स्पीच थेरेपी का ज़रूरत है तो स्पीच दिया जाता है, अगर उसको स्पेशल एजुकेशन का ज़रूरत है या ओटी का ज़रूरत है तो वो हिसाब से उसको भेजा जाता है वही डिपार्टमेंट के अंदर, और वहाँ पे उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, तरह तरह का थेरेपीज़ दिया जाता है। तो स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या करवाते हैं आप? स्किल डेवलपमेंट में सर हमारे यहाँ पे वोकेशनल यूनिट एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ पे एक फैकल्टी थी पहले, अभी फ़िलहाल के लिए कोई नहीं है, बट नया रिक्रूटमेंट हो चुका है, अभी कुछ ही दिन में आ जाएगा। तो अभी स्किल डेवलपमेंट में कैंडल मेकिंग हमारे यहाँ पे होता है। बच्चे को जो बेसिक जो जैसे हमारा जो बेसिक कुकिंग चीज़ जैसे कि मैगी बनाना हो गया या तो एक ऑमलेट बनाना हो गया, वो सब चीज़ भी सिखाया जा रहा है। कैंडल मेकिंग जो मोस्ट हमारा जो हम लोग सेल आउट भी कर रहे हैं मार्केट में, हम अभी एक चाह रहे हैं कि हमारा एक लोगो के साथ हम मार्केट के साथ अप्रोच करें, बट अब बिना लोगो के हम उसको सेल कर रहे हैं। दिया मेकिंग कर रहे हैं, जो फ्रेगरेंस वाला दिया है, खुशबू देता है, जैसे आप दिया जलाएंगे उससे खुशबू बाहर आएगा, तो वो दिया मेकिंग कराते हैं सर। और साथ ही साथ बोटल आर्ट भी करते हैं सर। वो डिसेबल बनाते हैं क्या चीज़? दिया, कैंडल एंड हाँ, ऑल सब जो है डिफरेंटली एबल पर्सन है। फीमेल्स के क्या चैलेंजेस है डिसेबिलिटीज़ में? अगर बात करें यहाँ पे हमेशा जो फीमेल होती हैं डिसेबल्ड, उनके चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, तो आइलैंड की अपनी कुछ समस्याएं हैं, तो यहाँ डिसेबल्ड फीमेल्स की क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि फ़ीमेल का यही है कि ये तो वर्नेबिलिटी कम्युनिटी के अंदर आता है, वर्नरेबल में। तो अगर देखा जाए तो उनको लाने के लिए कोई एक बंदा चाहिए होता है, उनके साथ एक केयर टेकर हमेशा चाहिए होता है। तो क्या होता है कि हमारा अप्रोच जो है, यूटी में 3 डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ जो मेन हमारा जो साउथ अंडमान है मेन डिस्ट्रिक्ट, उसी में हम लोग हमारा अप्रोच अच्छे से कर पा रहे हैं। हमारा स्टाफ के शॉर्टेज की वजह से और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज की वजह से हमारा अप्रोच अदर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है। तो हमारा टारगेट वहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है कि जहाँ पे दूसरे आइलैंड की बात हो जाती है। तो वो दूसरे आइलैंड में जितने भी डिफरेंटली एबल बच्चे हैं या जितने भी दूसरे एबल्ड पर्सनस हैं, उनको हम यहाँ अब तक नहीं ला पा रहे हैं और उनको हम ट्रेन नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों को लेके पेरेंट्स आ जाता है, अगर कोई गर्ल चाइल्ड है, अगर वो डिफरेंटली एबल है, तो वो उनको कभी कभी नहीं भी ला रहे हैं क्योंकि वो दूसरे आइलैंड से हैं, यहाँ पे आके कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, उनके साथ रहना है, तो ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उनकी सिचुएशन तो बहुत ख़राब होगी फिर वहाँ पे। जी, सिचुएशन तो ख़राब है सर, बट हमारा अप्रोच वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस 2 रीजंस। एक तो हमारा स्टाफ का स्ट्रेंथ कम है, दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना हाई। गवर्नमेंट का क्या रोल है उन एरियाज़ में? गवर्नमेंट का सर एक्चुअली सोशल वेलफेयर का अप्रोच हर एरिया में है, बट सोशल वेलफेयर और हमारा जो है टाई अप के साथ चलता है काम। तो हम चाहते हैं कि हमारा अप्रोच वो हर आइलैंड पे हो जाए। अगर उतना हो जाता है तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि उनको यहाँ पे लॉजिंग फैसिलिटी दे दे, यहाँ पे आके उन लोग ट्रीटमेंट ले, उन लोग थेरेपी ले, अपने आप को जितना भी हो सके हद तक रिकवरी करके रिटर्न जा सकते हैं ऐसे। तो सोशल वेलफेयर ऑफिस की आपने कहा कि काफ़ी रीच है वहाँ पे भी। जी सोशल। तो क्या सोशल वेलफेयर इनफ कर रहा है ताकि बच्चे यहाँ एजुकेशन हासिल कर सके या स्किल डेवलपमेंट कर सके, या अभी और काम की ज़रूरत है? सर सोशल वेलफेयर के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा क्योंकि सोशल वेलफेयर अपने हिसाब से काम तो कर ही रहा है सर, ये तो हम नहीं बोलेंगे, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, बट उनका मेजर फील्ड नहीं है डिसेबिलिटी में। उनका सिर्फ इतना ही रोल होता है कि वो यूडीआईडी कार्ड इशू करते हैं। उनको नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है यूडीआईडी के लिए। ओके। तो यूडीआईडी सप्लाई वो करते हैं, यूडीआईडी कार्ड। अदर देन जो हमारा काम है जो थेरेपी देना और साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट रिलेटेड, वो हमारा काम है सर। पेरेंट्स में कितनी अवेयरनेस है? सर हम कोशिश करते हैं 100% अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, बट द प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ना सर, सबसे पहले मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं वो थोड़ा सा पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो क्या होता है कि
उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हमारे साथ स्पेयर करें। अगर हम कुछ प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं तो उनके पास ये तरह तरह का मतलब ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उनको काम पे जाना होता है, तो वो प्रोग्राम पे नहीं आ सकते। अभी हमारा ऊपर से ऑर्डर आया है कि हर एक स्पेशल डे को हम लोग को सेलिब्रेट करना है, या तो हमारे पेरेंट्स के साथ करिए या तो कम्युनिटी के साथ करिए, बट हमें वो चीज़ करना है, बट हम नहीं कर पाते। सिर्फ रीज़न यही है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो नहीं आ पा रहे, कोई रीज़न से जो है वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे उतने हद तक। हम कोशिश कर रहे हैं हमारे तरफ से 100% देके, वो भी कोशिश कर रहे हैं, बट एनी हाउ मतलब वो नहीं हो रहा है, वो बन नहीं रहा है वो। दिल्ली की अगर बात करें, जब पंजाब साइड, तो बहुत सारी एनजीओ सीबीआर प्रोग्राम चलाती हैं, जी। तो क्या वहाँ की कभी किसी एनजीओ ने रीच आउट किया कि हम यहाँ पे आके कुछ काम करें? नहीं सर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बाहर का कोई एनजीओ अभी तक आया नहीं है हमारे पास। प्रेजेंटली हमारे पास 2 एनजीओ आए हैं। एक जो है यहाँ का एक आर्ट एंड कल्चर एनजीओ है, जो हमेशा कोई भी स्पेशल इवेंट होता है तो हमारे बच्चों के साथ वो सेलिब्रेट करते हैं, वो प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को थोड़ा सा कुछ मोनूमेंट वगैरह गिफ्ट वगैरह देते हैं, एक पूरा शाम हमारे साथ बिता के हमें थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा इन्जॉयमेंट देते हैं ऐसे। और एक एनजीओ है पंख बोल के, वो एनजीओ थोड़ा सा हमारे साथ कभी कभी इन कोलाबोरेशन में कुछ एक्टिविटी किया है, अभी तक 1 या 2 प्रोग्राम उन्होंने किया है। वो दोनों यहीं की लोकल एनजीओ हैं। यहाँ किस तरह की जॉब्स मिलती हैं डिसेबल्ड को? यहाँ पे सर जॉब अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो डिसेबिलिटी को कुछ ऐसा, यहाँ पे रिजर्वेशन है डिसेबिलिटी के लिए, बट वो रिजर्वेशन के लिए बच्चों को उतना नॉलेज या अप्रोच, जैसे कि कोई भी बच्चा उतना तक मतलब जैसे कि अगर 10th पास का क्वालिफिकेशन है तो कैसे भी वो दिव्यांगजन को 10th तक पास होना है, उसके बाद वो जॉब के लिए एलिजिबल बनता है। तो जनरली वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा है। जैसे हमारे पास कुछ बच्चे हैं, उनको जॉब करना है तो उनको प्राइवेट सेक्टर में ही स्किल डेवलप करके उनको प्राइवेट सेक्टर में ही काम करना है, क्योंकि उनके पास उतना क्वालिफिकेशन अभी तक नहीं है। तो क्या कारण है कि वो नहीं पढ़ पाते? जी, रीज़न यही है कि उनको मतलब जो हमारे यहाँ से मतलब जो या तो वो लेट से हमारे पास आते हैं, जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता जो टाइम पीरियड पे जैसे होना चाहिए था। इसमें भी वो जागरूकता की ही थोड़ा कमी जैसा लगता है सर। तो अभी आप लोग स्टेप ले रहे हैं लोगों को जागरूक करने जी के जी लिए? जी जी हम ये हमारा स्टेप पहले से ही चल रहा है, बट हम बोल रहे हैं ना, हमारा एक लिमिटेशन हो जाता है कि हम रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं हर एक नीडी पर्सन के लिए। जैसे बोलते हैं ना, वी कैनॉट रीच आउट एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस यूटी, दैट इज़ द प्रॉब्लम। कुछ प्रतिबंध ये है कि निकोबार एरिया में हम जा नहीं पाते, वहाँ पे सिर्फ फ्लाइट जाता है, एक्स्ट्रा परमिशन लेना होता है, और हमारे पास रिसोर्स भी नहीं है, हमारे पास उतना फिनेंशियली हम लोग उतना स्ट्रांग भी नहीं कि कुछ डिसीजन लेके हम लोग कर सके ऐसे। तो कुल मिला के आपकी बातों से लग रहा है जो यूनाइटेड नेशन का नारा है, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, वो कम से कम यहाँ तो लागू नहीं हो रहा। जी जी जी, यहाँ पे तो क्या अपील करेंगे आप जो ये शो सुन रहे हैं, जो बाकी एनजीओज हैं, तो हमारे जो बाकी देश के हिस्से में लोग सुन रहे हैं, या गवर्नमेंट सुन रही है, जब फॉरेन से लोग सुन रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि अंडोमान में क्या क्या होना चाहिए डिसेबल्ड के? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि डिसेबिलिटी एक ऐसा क्षेत्र है जो क्षेत्र में हर किसी को फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये दिव्यांगजन का एक मतलब एक ऐसा है, एक परिवार जैसा है जिसको सपोर्ट करने के लिए सबको हाथ मिला के चलना है, ना कि सिर्फ एनजीओ को, ना ही सिर्फ गवर्नमेंट को देखना होगा कि यूटी में अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो इनको क्या क्या चीज़ का कमी है। हम बहुत बार बोल चुके हैं, वो आइडेंटिफाई करना है, हमें इतना सपोर्ट मिल जाए गवर्नमेंट से कि हम हर चीज़ को कर सके। कोई भी डिपार्टमेंट में हमें उस तरह सपोर्ट नहीं मिलता है यहाँ का जो गवर्नमेंट से। तो हम चाहते हैं कि सब मिल के, जैसे एनजीओ हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सब मिल के अगर हाथ मिला के एक साथ आएंगे हमारे सपोर्ट में, तो हम डेफिनेटली वो चीज़ को रीच आउट कर सकते हैं, और हम कोशिश कर सकते हैं कि टोटली ये चीज़ को हम एकदम ठीक कर सकें। ये स्मिता मैम से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे अगर जॉब्स भी निकलती है तो कोई अप्लाई ही नहीं करता, तो काफ़ी स्टाफ आना नहीं चाहता यहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है, लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, सब कुछ है। तो आपको कैसे डिसेबिलिटी का इतना पैशन आया? नहीं, ये एक्चुअली देखा जाए तो सर यहाँ पे जो अभी 2 पोस्ट जो वैकेंट है, यहाँ का यूटी का जैसे यूटी के जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है कि स्पेशल फील्ड में भी पढ़ाई होता है। जैसे मैं MSW स्टूडेंट हूँ, मैंने मास्टर इन सोशल वर्क किया है, करते वक्त भी मुझे पता नहीं था कि मैं स्पेशलाइजेशन कर सकता था डिसेबिलिटी में, मैंने नहीं किया, मैंने कम्युनिटी डेवलपमेंट में किया है और MBA किया था। MBA के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट मुझे मिला है। तो एक्चुअली मुझे पहले से पैशन था काम करने का, और अभी जो भी यहाँ पे जो यूटी के बच्चे हैं उनको पहला तो नॉलेज नहीं है कि ऐसा भी कोई कर सकता है, स्पेशल एजुकेशन का कोर्स होता है,
स्पेशल एडुकेटर का कोर्स होता है, स्पीच थेरेपिस्ट का कोर्स होता है, जो कर सकते हैं। यहाँ के बच्चे जनरली सोचते हैं कि हमें या तो क्लर्क बनना है या तो MBBS डॉक्टर बनना है, हमें बाहर जाना है, JBT करना है, PET टीचर बनना है। तो एक कॉमन जो है ना सबके दिमाग में वही चलता है। ये फील्ड सबको अननोन फील्ड है, सबको पता नहीं है कि ये फील्ड में भी कुछ कर सकते हैं। तो ये पहला मैं ये बोलूँगा कि यूटी बच्चे को, मतलब यूटी के बच्चे को ये जागरूकता हो जाए कि ये ऐसा भी कुछ कोर्स है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जाए बाहर, कोर्स करके आ जाए और यूटी ही के ही जो जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको मदद करें फ्यूचर में। ये पहला मैं बोलना चाहूँगा। और बाहर वाले यहाँ इसलिए नहीं आते हैं कि ये मेनलैंड से बहुत दूर है, तो या तो फ्लाइट से या तो शिप से जाना आना होता है। तो एक परिवार जो है, अगर कोई गर्ल चाइल्ड का यहाँ पे जॉब होता है या तो कोई बच्चे का जॉब होता है, तो वो यहाँ पे पहले तो छोड़ते नहीं है कि इतना दूर काला पानी में आप जाओगे। जनरली पीपल आर थिंकिंग दैट ये काला पानी एरिया है, यहाँ पे सब जो है यहाँ में कुछ भी अच्छा नहीं है। वो थॉट प्रोसेस में आधा आदमी छोड़ता नहीं है कि अंडमान में जाके जॉब करने कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी है यहाँ में, तो आप 10,000 भी कमाओ काफ़ी है। वहाँ पे जरवा है, वहाँ मत जाओ, यहाँ पे ये है, काला पानी में क्यों जाओगे। ये कॉन्सेप्ट जो है ये एकदम स्टिग्मा नीड्स टू गो। यस यस यस, वो स्टिग्मा है, मतलब वो जो है तो अभी आप बता रहे हो कि 10th भी बच्चे बहुत मुश्किल से कर पाते हैं यहाँ डिसेबल्ड। हाँ जी, वो तो है, क्योंकि देखिए इंक्लूसिव आपने एजुकेशन बोलते हैं। किसी डिसेबल्ड को किसी गवर्नमेंट ऑफिस में देखा आज तक जॉब करते हुए? करते हैं जी, करते हैं जी, यहाँ पे? जी जी, बहुत जन करते हैं, एक दो जन नहीं, बहुत जन करते हैं। किस पोस्ट पे? जैसे बहुत जन हो गए, LGC पोस्ट पे है, कोई बड़े पोस्ट पे भी है, काम करते हैं। बट दे आर, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे जितने बच्चे हैं उसमें से, मतलब जैसे मल्टीपल डिसेबिलिटी हो गया तो उनको तो मतलब नहीं हो पाता है उनसे। हाँ। तो अगर जैसे किसी को अगर थोड़ा सा हैंडीकैप है, पाँव में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इस तरह वाले जो है वो बहुत ज़्यादा जॉब में है। जॉब है। और ब्लाइंड का क्या स्टेटस है? ब्लाइंड का सर मैंने अभी तक तो मुझे मेरे नॉलेज में तो मैंने नहीं देखा ना। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मैं मैम को बता रहा था, तो मेरे को जो है ऑटो पे सफ़र कर रहा था, गाड़ी में कर रहा था, वो कहते हैं हमने पहली बार आपको देखा है यहाँ पे। जी जी, ये मैं भी बोलूँगा, मतलब मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने तो नहीं देखा कोई ब्लाइंड को जॉब में अभी तक, आज का डेट में मैंने नहीं देखा सर यहाँ पे यूटी में। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। उम्मीद है कि मैं आपकी बातों को लोगों तक पहुंचा पाऊंगा, सब लोग सुन पाएंगे और समझेंगे कि हमें सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ही ध्यान नहीं देना है, हमें देश के बाकी हिस्सों तक भी पहुंचना है, जहां पे ज़रूरत है, जहां पे बाकी ज़रूरत है। तो यहाँ तो अभी एक्सेसिबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, अवेयरनेस, हर फील्ड में बहुत काम करने की ज़रूरत है। बाकी है सर, सच बात है, क्योंकि यूटी को बहुत जन इंडिया का नक्शे से दूर है बोल के बहुत जन, मैं तो ये एकदम मतलब सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि बहुत जन को अंडमान निकोबार पता ही नहीं है। मेरे आधे जितने भी मेरे फ्रेंड थे, मैंने चेन्नई से पढ़ाई किया है, मुझे बोलते थे अंडमान जाने के लिए वीज़ा का ज़रूरत होता है क्या? मुझे भी पूछ रहे थे, अभी मेरे गाँव में पूछ रहे थे कुछ लोग। तो ये कॉन्सेप्ट जब इंसान के दिमाग में है, इसके मतलब वो सोचते हैं कि हम कोई फॉरेन बॉडी है, हमारा इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट को दूर करना है सर सबसे पहले। अगर मोदी सरकार इंडिया में काम कर रहा है तो मोदी सरकार का वो स्कीम का बेनिफिट हमें यहाँ पे भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, यूटी तक। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। तो हमारे साथ एक पेरेंट हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी अफसाना। कहाँ से आप? जी यहीं से हैं। क्या डिसेबिलिटी है आपके बच्चे को? स्पीच डिले है अभी तक, और थोड़ा बैठने के लिए प्रॉपर ADHD जी। तो आपको जागरूकता थी, यू वर अवेयर कि बच्चे को पढ़ाना चाहिए और भी बच्चे पढ़ते, कैसे पता लगा आपको CRC के बारे में? जी मतलब सारे बच्चों को देखकर और अपने बच्चे को देखकर थोड़ा मतलब लगता था कि थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, अलग से, मतलब प्रॉपर किसी के साथ सोशलाइज नहीं होता है, खेलता नहीं है। तो डॉक्टर से कंसर्न सब करने के बाद ही पता चला है हम लोग को कि ADHD प्रॉब्लम है बच्चे को। यहाँ आने के बाद क्या क्या आपको मालूम चला और क्या चेंजेस आए? आपको लग रहा है कि बच्चा भी इम्प्रूव कर रहा है? जी, बच्चे के ग्रोथ के लिए भी मतलब ये नॉर्मली जो है 5 मिनट जो है नहीं बैठते थे बच्चे, जो अभी तो 1-1 घंटे ऐसे ही कि प्रॉपर वो बैठता है, बैठ के मतलब प्रैक्टिस करते हैं अपने आप से, डिसिप्लिन में ही रहता है यहाँ से वहाँ, मतलब नहीं कूदाकादी वगैरह नहीं करता है। गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी दे रही है डिसेबल्ड को यहाँ पे? एज ए पेरेंट आपको लगता है कि गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी दे रही है? जी हाँ, लग रहा है कि अभी मतलब बच्चे में इम्प्रूवमेंट है। और नहीं, गवर्नमेंट कोई बेनिफिट दे रही है आपको डिसेबिलिटी के बेस पे? अभी तक तो नहीं है सर, अभी जस्ट स्टार्टिंग ही है, डेज है बच्चे का, तो
अपने बाकी पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को नहीं भेजते स्कूलों में, घर ही रखते हैं? उनके लिए बस यही कहना है कि बच्चे को जो है सोशलाइज़ करवाइए आप। ये नहीं है कि बच्चे मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं है तो आप स्पेशल चाइल्ड को घर पर रख कर क्योर कर सकते हैं। आप जितना मतलब बच्चों के साथ उन्हें अटैच करेंगे तो उतना मतलब प्रॉपर बच्चे जो है रेगुलर अपना थेरेपी लेंगे तो उसमें उनमें उतना एक्टिवनेस आएगा। घर पे रख के आप उन्हें दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। बच्चों को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। प्रॉपर मतलब अपने आप में वो थोड़ा ग्रोथ करेंगे उनका वैसे इनके लिए। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है। अरुण जी, क्या डिसेबिलिटी आपके बच्चे को? माइल्ड ऑटिज्म है। आपको कब पता लगा सीआरसी के बारे में? सीआरसी के बारे में जब हम यहाँ बगल में हमारे पास एक स्कूल MGIS बच्चा वहाँ एडमिशन था, तब हम जब यहाँ आते थे तब हमें स्कूल से ही रेफ़र किया। तो उस समय सीआरसी नहीं था तब यहाँ पे जो VRC था, तब उसके बाद में हम VRC से ही जुड़े, लेकिन उस समय उतना स्टाफ नहीं थे। और 2018 में जाकर 19 में जाके CRC आया। मैम तो अभी 2021 में आए हैं। इससे पहले जियोपॉल सर थे तब। यहाँ क्या डिसेबल्ड बच्चों के सामने चैलेंजेस है आपके हिसाब से? अंडमान में जी, अंडमान में बहुत बड़ा चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन या जो अथॉरिटीज़ है उनको अभी तक ये सीरियसनेस का असेसमेंट नहीं है। ये सीरियसनेस का असेसमेंट नहीं होगा तो अब प्लानिंग ही क्या करेंगे? जी। वो अभी भी समझते हैं कि हमारा जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं बस वही आपका इसमें आते हैं, बस उनके हिसाब से खाली यही है। बट जो हमारे जैसे ऑटिज़म के बच्चे हैं, ADHD के बच्चे हैं, डिसलेक्सिया के बच्चे हैं, उनके लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए, इवन जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी चाहिए, यानी कि एक मॉडल स्कूल होना चाहिए जो इन बच्चों के लिए फोकस्ड हो, ये सब फैसिलिटीज़ अभी नहीं है यहाँ पर। और जो CRC है, CRC भी तभी कर सकेगा जब इनके पास में आप जगह देंगे। ये बिल्डिंग भी उनका नहीं है। जहाँ तक मैंने 2-3 बार लेटर लिखा, 2-3 बार इनके डायरेक्टर साहब से भी बात की, तो यहाँ ये बिल्डिंग उनका नहीं है। तो बिल्डिंग उनका ना होने के कारण उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वायर्ड फंड और सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो ज़मीन इनको अलॉट की गई है वो ज़मीन अभी तक उनको हैंडओवर ही नहीं हुई है। तो बेसिक जो सेटअप है वही सबसे बड़ा शॉर्ट हो रहा है अभी तक। जो लोग हैं एज ए पेरेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जी, तो लोग सपोर्ट करते हैं या दे मॉक और मतलब एक नेगेटिविटी? नहीं, ऐसा नहीं है। डाउन द लाइन पहले होता था, लेकिन अब लोगों में भी थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है। लोग समझते हैं कि हाँ बच्चे ऐसा भी ये बच्चों को ये तकलीफ हो सकती है। पहले उनको ऐसा लगता कि ओनली एक वर्ड था ना, मेंटल डिसेबिलिटी है, पर अब लोग समझ रहे कि नहीं, ये बच्चा को हाइपर एक्टिविटी है, ये बच्चे को डिसलेक्सिया है। थैंक्स टू कुछ थोड़ा अवेयरनेस कैंप्स भी हुआ, फिर ये CRC भी है, और भी बहुत लोगों के कारण थोड़ा सा चेंज हुआ यहाँ है। की जो यूटी गवर्नमेंट है वहाँ उनसे आप क्या डिमांड रखना चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या डिमांड रखना चाहते हैं? यूटी गवर्नमेंट से डिमांड तो नहीं, पर यूटी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक जगह इनको एश्योर की हुई। आई थिंक वो जगह इनको मिले तो ये फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन से उसका सेटअप को कंप्लीट स्कूल टर्न कर सके, क्योंकि स्कूल टर्न होगा तभी आप एक बड़ा डिफरेंस देख पाएंगे। अदरवाइज ये छोटे छोटे सेटअप से कुछ मेजर डिफरेंस नहीं होने वाला है। नहीं, मैं डिसेबल्ड के लिए पूछ रहा हूँ। डिसेबल्ड के लिए स्कूल नहीं, वो तो CRC के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया ना। फ्रॉम द पेरेंट ऑफ अ पेरेंट भी डिसेबल्ड, वही चाहेगा ना सर, हमें भी तो स्कूल चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से? सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही चाहिए कि अगर हो सके तो इसको थोड़ा और बड़े पैमाने में करें, ना कि इतना छोटा, क्योंकि ये अभी भी बहुत, जैसे मैंने शुरू से कहा, इसका असेसमेंट बहुत कम है, इसीलिए इसको और बेटर वे से असेस करके बेटर फैसिलिटीज़ लाना है। अच्छा, ऑटिज़म का मैंने जो कवर किया है काफ़ी सालों से, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन मेनलाइन इंडिया में जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम लोग हैं, वहाँ पे पेरेंट्स ने भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं ऑटिस्टिक बच्चों के। हुई है तो सेल्फ ग्रुप जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे होते हैं। जी, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं। जी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ पेरेंट्स ने इनिशिएटिव नहीं लिया? इनिशिएटिव नहीं लिया करके नहीं है। पेरेंट्स तो फिर भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बट पेरेंट्स को भी इस इशू के ऊपर अवेयर करना, ट्रेन करना भी अभी बाकी है। तो जब मैं तक वही बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने कोशिश नहीं की उन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें जो इन सर, ये मैं देखिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि मेनलैंड से बिना कोई मैसिव सपोर्ट के इतनी दूर फार फ्लंग एरिया में बहुत चीज़ें मुश्किल होती है।
सीआरसी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होकर भी नहीं कमिट कर पा रहा है। जी जी ठीक है, क्योंकि उनका भी चैलेंज यही है कि इतनी दूर मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो बहुत चैलेंजेस है, और सबसे बड़ी बात सर, सबको काम करना है थोड़ा सा अपने फैमिली के लिए भी, तो वो सारे फाइनेंशियल एंगल, इमोशनल एंगल, सब कुछ थोड़ा सा अंडमान पे असर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ विश्वास सर हैं, नोडल ऑफिसर हैं सोशल वेलफेयर ऑफिस में, डिसेबिलिटी पे काम करते हैं। तो बड़ी मुश्किल से हमें बात करने का मौका मिल रहा है इनसे। तो इनसे हम जानते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है, क्या डेमोग्राफी है, कितने डिसेबल्ड हैं, कैसे वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू रेडियो डन। नमस्कार जी, ऐसा है, मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मैं नोडल ऑफिसर हूँ डिसेबिलिटी की। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे इस द्वीप समूह में कुल मिलाकर के हमारे पास 6,660 दिव्यांगजन हैं, और उसमें से जो है हमने 5,570 लोगों को हमने UDID कार्ड उनका बन चुका है, जो कि हमारे इंडिया में हमारा अंडमान निकोबार जो है चौथे स्थान पे अभी है। इसके अलावा जो है दिव्यांगजनों को प्रति माह 2,500 रुपये की धनराशि उनको दिया जाता है, उनके खाते पे जमा करवाया जाता है, और इन लोगों की संख्या 3,700 के करीब है। इसके लिए हमारे पास फॉर्म्स मिलते हैं, फॉर्म्स उनको भर के देना पड़ेंगे। फॉर्म्स भरने के बावजूद उन्हें जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करना होगा, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, CDPO की वेरिफिकेशन करने के बाद हमारे ऑफिस में जमा देंगे। जमा करने के तत्पश्चात हम लोग उनको स्क्रूटनी करते हैं। उसके पश्चात जो है इन्हें हम उन धनराशि को उनको हम लोग अकाउंट में जमा कराते हैं। इसके अलावा जब रही शिक्षा की बात, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के टोपोग्राफी ऐसे हैं कि ये कई टापू हैं, बहुत सारे द्वीप हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से अलग से एक सेल है, IED सेल, और उसमें से जो स्पेशल टीचर्स है वो हमारे स्कूल्स में उन बच्चों को जो है उनको दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो है हमारा डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप जो है, जो पोर्टल के माध्यम से होता है, NSP पोर्टल से, उस पर भी हम लोग यहाँ से हम उन्हें धनराशि मुहैया करवाते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट बोट्स और बसेस में भी दिव्यांगजनों को फ्री में आने जाने की व्यवस्था उन्हें दिया गया है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट सेक्टर पे उनको रिजर्वेशंस है, अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर्स पे उनको दिया है। हमारे पास में उनको जो है मोबिलिटी एड्स अप्लाइंसेस भी उनको टाइम टू टाइम हम उनको देते हैं अंडर एडिप स्कीम, जो कि हमारे यहाँ पे CRC कार्यरत है, उनके माध्यम से हम देते हैं। तो इस तरीके के हम कई स्कीम्स हम दिव्यांगों के लिए इस द्वीप समूह में चलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक दिव्यांग होम है, जिस पे करीबन 20 दिव्यांग बच्चे यहाँ पे है। हम उन्हें सारे तरह की सुविधा उन्हें हम प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। तो सर यहाँ मतलब मेन चैलेंज ये है कि एजुकेशन के लिए मतलब स्पेशल स्कूल नहीं है एक भी, ऐसा क्यों? नहीं, स्पेशल स्कूल तो RT के तहत तो एक ही साथ तो होगा ना, इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ जो आइलैंड में बच्चे, जहाँ मतलब पता चला कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत कम है, हाँ। और जो बच्चे हैं, जो एजुकेशन है वो 10th भी मुश्किल से पास कर पाते हैं। हाँ। तो क्या रीज़न से, मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे? अभी का जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे तो मोटा मोटी अभी ठीक ही चल रहा है। अभी एजुकेशन पे अभी सभी पढ़ाई कर रहे हैं, और जहाँ तक आपका दिव्यांगों का दिक्कत है, इसमें थोड़ा सा ढीला हो रहा है कि हमारे अंडमान निकोबार का जो टोपोग्राफी है, एक टापू है, एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड, अलग अलग आइलैंड है। ऐसे टापू है जिसमें आपका 5 दिव्यांग बच्चे हैं। तो वहाँ के लिए फिर उनको थोड़ा सा एजुकेशन के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके लिए हमने अभी दोबारा गवर्नमेंट मीडिया से इंस्ट्रक्शन आया है, हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में कॉन्टेक्ट करवा दिया है करके अभी उन लोग सारे स्पेशल एजुकेटर के माध्यम से उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए। जो CRC में वो बात चल रही थी, वहाँ मैं पेरेंट्स से भी बात की कई लोगों से, तो कह रहे थे कि हमें प्रॉमिस किया गया है कि लैंड देंगे, बट वो हो नहीं पा रहा। क्या दिक्कत आ रही है वहाँ से? उस पर ऐसा है, देखिए अभी जहाँ तक लैंड की सवाल है, तो इस पर ऐसा है, देखिए साहब, हमारा अंडमान निकोबार की पॉपुलेशन जो है करीबन 4.5-5 लाख की है। उसमें से 6,000 दिव्यांगजन है। दिव्यांगजन के लिए एक CRC हमें ग्रांट लिया अंडमान के लिए, जो बिल्डिंग को आप लोग गए थे देखने के लिए। और अभी हमारे यहाँ पे उन लोग CRC बोल रहे हैं कि हमें ज़मीन चाहिए सिटी के अंदर में, शहर के अंदर में।
शहर के अंदर कोई ज़मीन नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि आप जाओ दूसरे टापू में खोलो, तो उन लोग उसके लिए थोड़ा सा किल्लत चल रही है। अभी जहाँ तक ज़मीन की सवाल है, ज़मीन तो बढ़ नहीं रहा है, रिक्वायरमेंट से बढ़ रहा है। हमने गवर्नमेंट के साथ में टाई अप किया है, हमारा कॉरस्पॉन्डेंस चल रहा है टाइम टू टाइम कि इसको इमीडिएटली जल्दी से जल्दी उनको लैंड दिया जाए। और जब तक लैंड ना देंगे, हम लोग उनको बिल्डिंग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट पानी के चार्जेस छोड़ दिया। जो बाकी आइलैंड पे जो ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ हम लोग नहीं जा सकते, हाँ, तो वहाँ गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है उनको इंश्योर करने के लिए कि वो पढ़ें और कुछ? वहाँ पे सारे अंडमान निकोबार में से हर 4 किलोमीटर पे दूरी पे आपको स्कूल मिलेगा, और हर 2 या 3, जैसे आप रिमोट एरिया में जाएंगे तो 2 या 3 स्कूल को मिला करके एक स्पेशल एजुकेटर होंगे, तो उनको अपना एडमिशन प्रोवाइड करेंगे। अगर दिक्कत होगी तो उनको होम बेस्ड ट्रेनिंग, उनको स्टडी। तो विश्वास जी कह रहे थे कि उनको हम होम बेस्ड एजुकेशन करवाते हैं। उनकी ऑडियो थोड़ी सी कट गई। तो ये हमने कवर किया अंडमान फ्रॉम डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव। कैसा लगा आपको हमें बताइएगा। अगर फाइनली मेरा एनालिसिस पूछें आप, तो सिचुएशन दयनीय है। कोई काम डिसेबिलिटी पे वहां पे नहीं हो रहा। सेंटर की गवर्नमेंट्स को ही वो बता रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट है, अपने लेवल पे बहुत कम है। आपने सुना ही होगा कि जब मैंने जमीन को लेके सवाल पूछा तो क्या था कि आप दूसरे टापू पे चले जाएं, तो इस तरह का रवैया था। इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, बहुत लड़ने झगड़ने के बाद इंटरव्यू दी। तो कुल मिला के कुछ खास नहीं हो रहा। 2011 का सेंसस ही कोट कर रहे हैं वो 6000, तो जबकि अब तो 21 डिसेबिलिटीज हो गई हैं। तो वो अपनी अचीवमेंट बताते हैं कि हमने 6000 में से 3000 को दे दिया। तो कुछ खास नहीं है, जैसा मैंने आपको सुनाया इस कवरेज में। उम्मीद है चीजें बदलेंगी, और मेरी ये कोशिश थी कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंडमान में नहीं पता कि क्या चल रहा है डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, हम लोग बात भी नहीं करते उस लेवल पे, तो मैंने अपना फर्ज समझा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।